Assalamu alaikum beta, how are you? I hope you're doing well. Welcome to Merit Schooling System and College Virtual Learning Program. Beta, after 2 extensive days of e-assessments and everything, we have come back again to the lecture session. And what are we going to do today? We are going to do the lectures of creative science. As you remember, we were already doing lesson number 2, that is adaptations in plants. And in this, let's do a little bit review of the chapter. What were we studying? We were studying beta about the adaptations of the plants and how plants can be divided into two parts, into two kinds according to their adaptation. Okay. So basically plants can be divided into aquatic plants and terrestrial plants. Aquatic plants are those that grow in water and terrestrial plants are those that grow on land. So we did the subsections of aquatic plants and what did we learn in that? We learned that aquatic plants can be further divided into free floating plants, underwater plants, fixed plants, emergent plants, and we finished the aquatic plants till there. That and we in detail I showed you the pictures as well, and in detail we discussed these various sub categories of underwater of aquatic plants. So what we are going to do today is that we are going to do the terrestrial plants today, and terrestrial plants are the plants that grow on land. So let's do the reading and explanation side by side. Terrestrial plants that grow on land are called terrestrial plants. They are different depending on the type of soil and climate they grow in. They are of following types. So the plants that grow on land are called terrestrial plants, and they are different types of terrestrial plants depending upon the soil and climate that they require to grow. So number one is coniferous trees. Coniferous trees. We can see these trees in cold and hilly places. These have needle-like leaves and have cones instead of flowers. Examples of such trees are pine, fir, spruce, and cedar. Their slim, conical, and slanting shape make snow slide off easily. They do not shed their leaves in winter. They are evergreen trees. So, according to the adaptation of the plants that grow on land, we can divide terrestrial plants into number one, coniferous trees. But coniferous trees are those trees that grow in snowy places or hilly cold places. And the best example is if you go to the northern areas, जैसे जैसे आप लोग ठंडे इलाकों की तरफ जाओ, नथिया गली तो आप लोग गए ही होंगे, बहुत सारे आप में से नथिया गली गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ जो प्लांट्स होते हैं इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, और उनकी जो है लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, यानी बिल्कुल सुई की तरह जो है उनकी शेप होती है, पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं, और उनके ऊपर जो है फूल नहीं लगते बल्कि पाइन्स लगती हैं, ठीक है, कोन्स होते हैं. तो वो बिल्कुल आई विल शो यू अ पिक्चर इफ़ आई कैन फाइंड वन. एंड वो पाइन्स होते हैं, उसके ऊपर कोन्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ से ही उनका जो फ्रूट है वो बेसिकली उनका फ्रूट भी वो पाइन्स ही होती हैं उन कोन्स के अंदर से. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको चिलगोज़ा अगर आप में से किसी ने खाया हो तो ये बेसिकली ये इन्हीं प्लांट्स का फ्रूट होता है. एग्जाम्पल जो है पाइन है, फर है, स्प्रूस एंड सिडर है. ये बेसिकली बहुत स्लिम और कॉनिकल यानी कि कोन शेप्ड होते हैं, और इसकी कोन शेप होने की वजह यह है कि इन इलाकों में चूँकि बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो जब बर्फ़ इनके ऊपर पड़ती है तो आराम से स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है, इनके ऊपर जमा नहीं होती. अगर ये घने और फ्लैट हों तो सारी बर्फ़ इनके ऊपर जमा हो जाए और ये बर्फ़ का ज़ोर बर्दाश्त ना कर पाएँ और फिर ये टूट भी सकते हैं. तो बेसिकली ये एक तो ये मजबूत बहुत ज़्यादा होते हैं और एक ये कोन शेप्ड में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हो, देखें कोन शेप्ड है, तो जिसकी वजह से ये बर्फ़ जो है स्लाइड करके इनके ऊपर से गिर जाती है. और ये एवरग्रीन होते हैं, ये अपने पत्ते नहीं झड़ते, यानी कि जिस तरह बाकी प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्ते झड़ देते हैं, सिर्फ ब्रांचेस रह जाती हैं. इन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, कॉनिफेरस ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है. Okay, let's move to this. Look at this picture. This is the picture of the pine trees and this is the picture of the fir trees. Next is mangrove trees. Okay.
Near the seashore where the river empty into the sea lie the marshy areas. These places are hot and damp. The plants that grow here are called mangroves. These plants are adapted to live in soil that is soaked in water. The roots grow above the soil since the soil is full of water. The roots do not get air to breathe. Roots send special structures to the soil surface to breathe. They are called breathing roots. Examples: Candelia and Caryopsis. Okay. Another, the terrestrial plants. Number one, it was divided into coniferous trees, and number two, now it is divided into mangrove trees. अच्छा, अब मैंग्रोव ट्रीज कौन से होते हैं? ये मैंग्रोव ट्रीज वो होते हैं जो सी शोर के पास, जो रिवर, सी शोर या रिवर के पास का जो एरिया होता है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन एरियाज़ को मार्शी एरियाज़ कहते हैं. तो उन एरियाज़ में जो ग्रो करते हैं उनको हम लोग मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं. अब मार्शी एरिया क्या होता है? मार्शी एरिया बेटा वो एरिया होता है जो पानी के पास पाया जाता है, और वो मार्शी इसलिए होता है कि उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि प्लांट बहुत इजीली वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती. और ये प्लेसेस बेसिकली गीली भी होती हैं, और साथ यहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो गर्म होता है. तो प्लांट्स को पानी भी वाफर मिल रहा होता है और सनलाइट भी वाफर मिल रही होती है, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स बहुत ईजिली ग्रो करते हैं. ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं. तो फिर ये जहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं. ये प्लांट जो हैं इनको ये अडेप्टेड होते हैं इस तरह से कि ये सॉइल के ऊपर जो है इनके रूट्स जो हैं वो पाए जाते हैं. वजह ये होती है कि ज़मीन के नीचे इनको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं रिसीव हो रहा होता, तो इसलिए फिर ये जो है, और पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये लोग जो हैं ब्रीथ करने के लिए इनके रूट्स ऊपर आ जाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऊपर आ जाते हैं ज़मीन के सरफेस पे, ताकि ये प्रॉपरली रूट्स जो हैं वो ब्रीथ कर सके. तो ऐसे जो प्लांट्स हैं मैंग्रोव ट्रीज जो हैं, इनकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो कैंडेलिया है एंड कैरियोप्स है. कैंडेलिया इज दिस, यू कैन सी द पिक्चर हियर, दिस इज द कैंडेलिया प्लांट. ओके, number third example of evergreen tree of terrestrial plants is evergreen trees. At other place near the coast there are coconut trees, rubber trees and fields of cotton and rice. These plants need plenty of water and sunlight. These plants have lots of leaves but they do not shed them, so they remain green and are named the evergreen trees. Acha, another example of terrestrial plants is the evergreen trees. Number 3 is evergreen trees. ये evergreen trees कौन से होते हैं बेटा? ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो कि कोस्ट के पास, अगेन पानी के पास होता है. और कौन से ट्रीज़ हैं जो वो इनके पास ग्रो करते हैं? तो बेसिकली कोकोनट ट्रीज़ जो होते हैं, रबर प्लांट्स जो होते हैं, और उसके अलावा कॉटन और राइस, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है और साथ ढेर सारी सनलाइट चाहिए होती है. जब इनको ये दोनों चीज़ें प्लेंटी में मिलती हैं तो ये जो है इनकी बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, और ये जो है अपने लीव्स को शेड नहीं करते, कॉन्स्टेंटली फूड बनाते रहते हैं, और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, कभी भी मतलब ये ड्राई होके नहीं गिरते. तो ऐसे प्लांट्स को हम एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं. तो एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दी हुई है. द एग्जाम्पल इज कोकोनट ट्रीज, रबर ट्रीज, फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड राइस. So you have the picture of rubber tree here. Okay, number 4 पे जो terrestrial plant आता है, that is known as deciduous trees. In the plain, the plants can bear the heat and give shade in summer, but they shed their leaves in winter. Such trees are called deciduous trees. This is how they adapt themselves and survive. When the season changes, fresh new leaves appear. A few examples are rosewood, teak and gulmohar trees. अच्छा, deciduous trees. Number 4 is deciduous trees. Deciduous trees वो ट्रीज़ हैं बेटा जो प्लेन के अंदर पाए जाते हैं. प्लेन यानी बिल्कुल जो सीधी ज़मीन होती है, ये और आम ज़मीन होती है जिसके आसपास पानी भी नहीं है, ये वो इस तरह की कोई लाजमात की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल सी प्लेन कोई ज़मीन हो, उसके ऊपर जो दरख्त उगता है उसको deciduous ट्री कहते हैं. इनकी फ़ीचर्स क्या हैं deciduous ट्री का? इनका फ़ीचर्स ये है कि ये मतलब सूरज को भी बर्दाश्त कर लेते हैं. ठीक है, अगर पानी ना हो तो वो भी ज़मीन में से रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं से ये अपना गुजारा कर लेते हैं. उसके अलावा जो है ये अपने विंटर में ये अपने लीव्स को शेड करते हैं, और ये ऐसे दरख्त जो हैं ये deciduous जो हैं deciduous ट्रीज कहलाते हैं.
और ये अपनी अडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, यही करते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये समर में मतलब इनके रूट्स जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं, ज़मीन के काफ़ी गहराई तक ये जाते हैं और ये अपना पानी खुद ब खुद वहाँ से ज़मीन में से अब्जॉर्ब करके ये अपने आप को जो है ये सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा हीट बहुत तेज़ होती है, सनलाइट भी इनको मिल रही होती है और विंटर में ये अपने लीव्स को शेड करते हैं और समर में इनके गहरा साया होता है जिसके नीचे हम बैठ के शेड ले सकते हैं। और जब सही प्रॉपर सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, तो इनके नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर नए पत्ते निकल आते हैं। इनकी जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं दैट इज़ रोजवुड, टीक एंड गुलमोहर trees. This is the teak trees and this is the gulmohar tree. Okay. Then next is desert plants. Number 5. Desert plants are the desert areas are covered with sand. Those desert areas that get a little rainfall have few plants. These plants live on very little water and store what they get. Their roots go deep in search of water or spread widely. As the plants cannot afford to lose water, their leaves are reduced to spines. These plants have a green fleshy stem. The stem stores water, food and water. Cactus and prickly pear are examples of such plants. अच्छा, नंबर 5 पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट आता है दैट इज़ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। ये डेजर्ट प्लांट एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पर आप लोगों को पता है सहरा में तो वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और बाद सहरा तो ऐसे हैं जहाँ साला साल बारिश होती ही नहीं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनका बेसिकली तरीका क्या है, उनका बेसिकली तरीकाकार ये है कि वो जो हैं उनकी लीव्स नहीं होते, उनके पास ये नीडल्स रह जाती हैं, ठीक है, लीव्स के नाम पे। और उनके रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डीप होते हैं या बहुत ज़्यादा सरफेस पे फैले होते हैं क्योंकि इन्होंने अपना पानी खुद सर्च करना होता है या अपना पानी खुद सर्च करते हैं ज़मीन के अंदर से और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी और फ्लैशी होती है क्योंकि इन्होंने जो पानी एब्जॉर्ब किया वो होता है उसको वो संभाल के अपने अंदर रखना होता है। अगर इनकी स्किन मोटी नहीं होगी तो पानी सारा इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेशन से बचने के लिए इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है ताकि ये पानी इनका लूज़ ना हो और इस तरह से ये प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और ये डेजर्ट प्लांट्स कहलाते हैं। इनकी बेहतरीन एग्जांपल्स जो हैं वो कैक्टस है और प्रिकली पेयर है। ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैक्टस एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रिकली पेयर। और ये आज आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में गमलों के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है इतना ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता, पानी ना भी दो तो काम चल जाता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज in number 6 is insectivorous plants. What are insectivorous plants? Some plants grow in soil which is poor in minerals, so they eat insects to get enough nutrition. The example are pitcher plant and Venus flytrap. The leaves of the Venus flytrap are like a trap. They can snap shut when an insect sits on them. The hollow leaves of the pitcher plant are filled with nectar. When insects come to drink this, the lid closes and they are eaten by the plant. अच्छा बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी ये वो प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को खाते हैं अपने मिनरल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो अपने मिनरल्स को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स के ज़रिए अपनी न्यूट्रिशन पूरी करते हैं। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल जो है वो पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप है। अगर आप यहाँ देखें वीनस फ्लाईट्रैप को यहाँ पर देखें तो इसका जो वो है शेप है ये ट्रैप की तरह है, ठीक है। ये देखें, ये इंसेक्ट्स बीच में आया तो ये ऊपर से बंद हो जाएगा, बंद होके फिर इसके अंदर ऐसे जूसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं इन प्लांट्स के अंदर जो कि उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। दे शट डाउन एंड द इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड। इसी तरह से अगर आप पिक्चर प्लांट को देखो तो बेटा ये पिक्चर इसको पिक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल देखें यूँ एक बॉटल की तरह होता है, पिक्चर की तरह होता है। ये पिक्चर वैसे बेसिकली मटके को कहा जाता है, तो ये उसकी तरह होता है, ठीक है। तो जब इंसेक्ट इसके अंदर ना नेक्टर भरा होता है, मीठा नेक्टर भरा होता है जो फ्लाइज और इस तरह के इंसेक्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। वो जब इसके अंदर जाती हैं उस नेक्टर को पीने के लिए, इसके ऊपर यहाँ देखें ये ढक्कन पाया जाता है। ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है और ऑटोमेटिकली देखें ये ढक्कन है, ये ढक्कन जब बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इंसेक्ट जो है उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डिड यू नो भी पढ़ लेते हैं। क्लाइंबर्स इन द रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड
lianas. Some are as thick as strong as rope. अच्छा, कुछ रेन फॉरेस्ट जो हैं उनमें ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं बेटा जिनके से नीचे रस्सियाँ लटक रही थी. अगर आप लोगों ने टार्जन या माउगली देखा हो जंगल बुक, तो उसमें आपने देखा हो कि अक्सर वो उनके ज़रिए जो है एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप करता होता है. तो बेसिकली वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके मतलब वो क्लाइंबर्स होते हैं और उनको हम लियानास कहते हैं. वो इतने थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको आप रोप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो. Okay, let's move to plants of the grass family. Okay. Cereals like maize, wheat and rice belong to the grass family. These plants are useful to us in many ways. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग ग्रास फैमिली से कहते हैं और इनमें जो है सीरियल्स अब भी आ जाते हैं, जैसे कि मेज़ यानी भुट्टा, वीट यानी कि गंदम, राइस यानी कि चावल. ये सब ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सब फूड्स हैं बेटा. दीज आर बेसिक फूड आइटम्स. They provide food to the human beings and animals. ये ह्यूमंस को और एनिमल्स को ऑब्वियसली फूड प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमंस जो हैं वो हम ग्रेन को यूज़ करते हैं, जैसे कि भुट्टा हो गया, वीट का ग्रेन हो गया, राइस का ग्रेन हो गया, हम यूज़ कर लेते हैं. और उसके जो बाकी ग्रीन पार्ट होता है, जो उसके पत्ते शत्ते और उसका भूसा शूसा होता है, वो एनिमल्स यूज़ करते हैं. फॉडर फॉर एनिमल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम सच प्लांट. वही जो भूसा शूसा होता है जो जानवर इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय वगैरह, ये सब जो है ये फॉडर वो एनिमल्स यूज़ करते हैं. बैम्बू, अ जाइंट ग्रास, इज़ यूज टू मेक ब्रूम, बास्केट्स, मैट्स, सब है. बैम्बू भी बेटा एक बहुत सख्त किस्म का वो है. वैसे वो होता तो बहुत सख्त वो होता है, लेकिन उसको हम ग्रास फैमिली में ही काउंट करते हैं. तो उससे जो है ये झाड़ू वगैरह, बास्केट्स वगैरह, ये मैट्स वगैरह बनती हैं. वेरियस ग्रासेस आर यूज टू मेक पेपर. और ग्रास की एक वैरायटी ऐसी भी है बेटा जो कि पेपर बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसे हम पेपरस भी कहते हैं. पेपर वॉज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पेपरस. पेपर गॉट इट्स नेम फ्रॉम दिस ग्रास. तो एक पेपरस नाम का एक ग्रास था जिसमें से सबसे पहले इजिप्ट वालों ने पेपर बनाया, तो इसलिए पेपर को उसका जो नाम है पेपर वो पेपरस से आया है. ठीक है. ड्राइड ग्रासेस आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल. अगर आप देखिए, अगर आपने फ्रूट का कार्टन या क्रेट ख़रीदो तो आप देखते हैं कि वो फ्रूट जो है वो सूखे घास में पड़ा होता है, तो वो जो ड्राई घास है वो पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है. दे कंजर्व द सॉइल एज दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो फ़वाइद क्या है बेटा ग्रास के, कि ये जहाँ पर भी जंगली घास है, जो एनिमल का फॉडर है, उसके अलावा पैकिंग मटेरियल के अलावा और जो उसके यूसेस, उसके अलावा एक सबसे बड़ा बेसिक यूज़ उसका ये भी है कि ये जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जब बहता है तो वो जो ज़मीन के ऊपर फर्टाइल सॉइल है उसको भी बहा के ले जाता है. तो ये जहाँ जहाँ घास मौजूद होता है, ग्रास मौजूद होता है, वो जो है टॉप सॉइल को बड़ी मजबूती से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से बारिश की वजह से ये बह के कहीं भी नहीं जाता, बल्कि ज़मीन के ऊपर ही मतलब वो उस जगह पे महफूज रहता है. तो इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल एज वेल. But with this, we come to the end of this chapter, and have a blessed rainy Friday. And I hope you will prepare yourself for the Jummah prayer. This is the first Jummah of Ramazan Kareem. So आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान करीम का पहला जुम्मा. और pray for yourself, pray for your family, pray for your school, your institute, pray for us, your teachers, and remember us in your prayers, beta. Thank you. Have a blessed Friday. Allah Hafiz.